Is P is a point on the bisector of angle ABC. P is a point on the bisector of angle ABC. If the line through P parallel to BA, first of all we have to draw an angle ABC. This is ABC, angle ABC. Okay, and P is a point on the bisector of angle ABC. P is a point on the bisector of angle ABC. So draw bisector of angle ABC. You all know how to draw bisector of an angle. For this, draw an arc intersecting arms of angle ABC. अब देखिए यहाँ पर AB आर्म्स है, BC आर्म्स है. इसको सपोज करो कि इसको, अच्छा इसमें M दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसमें अगर पूरा में M नहीं है तो यहाँ पर हम M मान लिए और ये N मान लिए और फिर उसी रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे. फिर उसी रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से, सपोज कीजिए ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, ये कट कर गया. जब इसको हम लोग मिला देंगे, ये इसको अगर हम लोग मिला देंगे ऐसे सीधा, तो ये बाइसेक्टर हो गया. फिर क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, बाइसेक्टर हो गया मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया. After that, it is given that P is a point on the bisector. P is a point on the bisector. Suppose करो कि ये P point हो गया bisector पे, and it is also given that if the line through P parallel to BA, now we have to draw a line. We have to draw a line through P which is parallel to AB. तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में ऐसे, ये पैरेलल हो गया. हाँ, ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए ऐसे, एक लाइन ड्रॉ किए थ्रू पी बीच इज पैरेलल टू AB. AB के पैरेलल ये हो गया. उसके बाद क्या करा है, मिड्स BC एट Q, मतलब BC को कहां पर मिलता है, ये N यहाँ है, ये Q पे मिलता है. तो हम लोग को क्या करना है, we have to prove that BPQ, where is BPQ? BPQ is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. In isosceles triangles क्या होता है, isosceles triangle का दो प्रॉपर्टी होता है. First property is two sides are equal, okay, and another is base angles are equal. If two angles are equal, then we can also say that it is an isosceles triangle. तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, चलिए गिवन जो दे रखा है उसको लिख लेंगे यहाँ पर. इसमें जो गिवन दे रखा है टू प्रूफ. अब प्रूफ हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है BPQ is an isosceles triangle. Isosceles triangle, यही हम लोग को प्रूफ करना है. ये प्रूफ करना है तो प्रूफ करते हैं हम लोग. प्रूफ में क्या करेंगे, here BP is the bisector of angle ABC. It is given BP is the bisector of angle ABC, so that angle ABP is equal to QBP, okay, and it is also given that AB parallel to QP, so that this angle is equal to this angle by alternate interior angle. So we can also say that ABP is equal to angle, this angle is equal to this by alternate interior BPQ by alternate interior angles. You all know property of parallel lines and its transversal. When two lines are parallel and a transversal intersecting other two lines at two distinct points, then pair of alternate interior angles are equal, pair of corresponding angles are equal, and sum of co-interior angles are 180 degree. It means angles formed to the same side of transversal and interior of parallels, sum of these angles is equal to 180 degree. Now in this question, ABP is equal to this and ABP is equal to this, and we all know that equals of equals are equals.
So using equation 1 and equation 2, this angle is ABP is equal to this and ABP is equal to this. It means this is equal to this. So angle QBP is equal to BPQ. Okay, where is QBP? QBP is equal to BPQ. Okay, now two angles of triangle BPQ are equal, so we can say that BPQ are an isosceles triangle. Okay, in this figure given is x is equal to y. Here angle x is equal to angle y and AB is equal to AC. AB, this part AB is equal to CB. Sorry, AB is equal to CB. Now we have to prove that AE is equal to CD. ये हमको प्रूव करना है, इसको और इसको इक्वल करना है. तो इक्वल क्या दे रखा है ढंग से देखिए, AB इज इक्वल टू CB ये, और प्रूव करना है ये वाला इसके इक्वल प्रूव करना है. तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे, दो ट्रायंगल को अलग अलग कर लेंगे. मतलब किस ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे, अगर AEB को हम लोग प्रूव कर ले, AEB को देखिए, AEB को प्रूव कर ले किसके, ये हो गया CDB के, मतलब CDB. थोड़ा फिगर सही से नहीं बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन को समझिए कैसे हम निकाल रहे हैं. ये हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया D. इसको हम लोग ये प्रूफ कर ले तो मेरा हम लोग का काम बन जाएगा. तो इसके लिए प्रूफ करते हैं. प्रूफ देखिए, अगर इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग का ये A और B मानने का मतलब है कि हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना लेंगे, नहीं तो वो लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर x और y तो इक्वल है, तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर से, स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से. अब देखो सेम वे b प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. अब देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री या b प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या हुआ ना, दोनों का RHS इक्वल है, दोनों LHS इक्वल होना चाहिए. इज इक्वल टू b प्लस वाई, ये से x और y इक्वल है तो कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू b आ गया हम लोग का. अब देखिए b वाला तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मतलब ये तो इक्वल है ही b दोनों में. अब ये देखिए यहां से जो d आया, ये एंगल E जो है इसको b लिखे हुए हैं, और यहाँ पर d जो है a लिखे हुए हैं, दोनों इक्वल हो गया. जैसे ही दोनों इक्वल हो गया, ये तो कॉमन है ही ये, और हम लोग को इक्वल क्या दे रखा है क्वेश्चन में, AB इज इक्वल टू CB ये दे रखा है. तो प्रूफ इन ट्रायंगल ABE, when we take triangle ABE and triangle here ABE, then we have to take CBD. देखो एक ट्रायंगल को ले लिए तो इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग जो है दूसरा को भी लेंगे. तो AB किसके इक्वल है, AB जो इक्वल है CB के इक्वल है, और AB तो यहाँ पर CBD हो गया. चलिए, तो यहां से हम लोग क्या मिला ना कि AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB. और देखो ABE, एंगल ABE इज इक्वल टू CBD, ये कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है. और देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AEB, अभी प्रूफ किए हैं. ABE इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर CDB, ये हो गया CDB. तो ये क्या हो गया ना कि ट्रायंगल ABE और जो है ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CBD के. CBD यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ, देखिए ये एंगल इसकी इक्वल है, एंगल AAS, दो एंगल कंटिन्यू है, फिर एक साइड है, तो AAS हो गया एंगल. यहां से एंगल साइड, तो फिर एंगल साइड.
अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू सी डी। देखिए ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, सी डी। ए इज इक्वल टू सी डी इज बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इसको इक्वल करके दिखा दिए, कॉन्ग्रुएंट पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर ही दिए और प्रूफ हो गया। देखिए ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है तो पहले हम लोग गिवन को देखते हैं कि गिवन क्या है ना। उसके बाद गिवन को मिलाते हैं फिगर से, क्या क्या गिवन है फिगर से मिलाते हैं। तो गिवन में है एक ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल एबीसी जो है एंगल बी जो हो गया है 90 डिग्री है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है BCDE। देखो BCDE है ना, इज ए स्क्वायर ऑन साइड BC। ये BC पर एक स्क्वायर है ना। तो अब उसके बाद क्या कर रहा है कि BC एंड ACFG है ना, इज ऑल्सो ए स्क्वायर ऑन AC। ये AC पे स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वी ऑल नो दैट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, सो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ये हो गया। अब ये इस स्क्वायर में ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो देखना है। यहाँ भी 90 डिग्री होगा स्क्वायर है तो, और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, हर जगह 90 डिग्री, हर एंगल पे 90 डिग्री हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है ना। हम लोग को प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BF, मतलब AD, ये AD और ये BF को इक्वल करके दिखाना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ACD जो है इसको कट करके निकाल लेंगे, इसको कट करके निकाल लेंगे। तो हो गया ACD हो गया, ठीक है ना। और यहां से ये निकालेंगे BCF। थोड़ा इधर उधर फिगर हो गया है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, वहां से मिलाइए। बस ये दोनों हम कट करके निकाले हैं समझने के लिए। ये BCF हो गया। अब देखिए क्या है ना कि BC जो है BC किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो BC इज इक्वल टू CD। ये BC CD के इक्वल है, तो यहाँ पर BC है और ये CD है। अब हम लोग को क्या है कि ये CF जो है किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या है, देखो यहाँ 90 है, ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 प्लस दिस, इसमें भी 90 प्लस ये एंगल, तो एंगल भी बराबर हो गया, हम लोग का काम बन जाएगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में पहले एंगल को इक्वल करके दिखा देते हैं। देखो BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ACF, एंगल ACF 90 डिग्री के इक्वल है। अब देखो BCD में हम लोग क्या जोड़ देंगे, BCD में ये वाला ऐड कर देंगे, ये वाला कॉमन जो है ACB ऐड कर देंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू ACF में भी हम लोग ऐड कर देंगे ACB। जैसे ही ऐड किए देखिए BCD, यहाँ BCD प्लस ACB, इसको ऐड कर दिए तो हमको बन गया ACD, एंगल ACD ये बन गया इज इक्वल टू, अब यहां से है ACF और है ACB, तो ये बन जाएगा BCF, एंगल BCF। मतलब देखिए BCF कहाँ है, BCF ये एंगल हुआ और ACD क्या हुआ, ये एंगल हुआ। अब एंगल भी इक्वल हो गया तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होगा तो सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ में हो चुका है। अब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ये लिख लेते हैं ACD, या यहां से लिख लेते हैं BCF एंड ट्रायंगल। जब ये BCF हुआ तो यहां से क्या होगा, DCA हो जाएगा, DCA हो जाएगा। इसी के अनुसार लिखेंगे BC किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, हो गया। तो यहां से हो गया BC इज इक्वल टू DC और BCF, एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल DCA। अभी अभी प्रूफ किए हैं, है ना। BCF और ACD बोले या DCA, बात बराबर है। अब यहां से क्या है ना कि BC तो इक्वल है ही, अब यहां से CF भी इक्वल है। तो CF किसके इक्वल है, CF जो है CA के इक्वल है, CF CA के इक्वल है, हाँ ठीक है। तो इसलिए क्या होगा ना, हम लोग इधर लिख लेते हैं ट्रायंगल BCF
BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा DCA। DCA किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, SAS से हो जाएगा, साइड एंगल साइड। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, AD कहाँ है जी, यहाँ AD इक्वल टू BF, AD इक्वल टू BF, ये हो गया BF, ये प्रूफ हो गया हम लोग का जो प्रूफ करना था। ठीक, इसको देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑन साइड AC, D जो है AC के मिड पॉइंट है, सच दैट BD हाफ ऑफ AC, ये BD जो है AC का हाफ है, सो दैट ABC इज ए राइट एंगल है ना, एंगल ABC जो है एक राइट एंगल है, तो इसके लिए ABC को राइट एंगल की तरह पहले बना लेंगे, लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको प्रूफ करना है ABC इज ए राइट एंगल, तो इसको ABC को राइट एंगल की तरह बना लिए। अब इसमें क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल को बना लिए जिसमें B कितना है 90 की तरह बना लिए, 90 अब प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हमको ले लेंगे AC जो मिला है, D जो है मिड पॉइंट लेने का, इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा फिगर तैयार हो गया। फिगर तैयार हो गया तो D मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और BD जो है BD जो है यहाँ पर गिवन जो है BD AC का हाफ है, मतलब ये जो होगा ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो गिवन में आप लोग अपना लिख लीजिए क्या गिवन है, टू प्रूफ भी लिख लीजिए। टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, यहाँ टू प्रूफ करना है एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखो ए एंगल A और इसको भी A मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि प्रूफ में देखो, प्रूफ में जो है यहाँ पर BD इज इक्वल टू CD, तो यहाँ पर बेस एंगल इक्वल होगा, तो इसीलिए इसको A और A मान लीजिए। ठीक, और देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर देखते हैं AD इज इक्वल टू, यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं तो हम शॉर्ट मानेंगे BD, तो इसको मान लीजिए ये B होगा तो ये भी B होगा। अब हम लोग A प्लस B अगर 90 प्रूफ कर देंगे तो हो गया हम लोग का काम। अब देखिए क्या होगा, सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेंगे तो ये हो गया A प्लस B प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, इसका और इसका और इसका 180 डिग्री, तो इसका हो गया A, ये हो गया B, और ये पूरा हो गया A प्लस B, तो A प्लस B और A प्लस B 2A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो A प्लस B कितना हो गया 90 डिग्री, तो A प्लस B 90 डिग्री हो गया, तो A प्लस B क्या है, एंगल ABC है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया हम लोग का। हाँ, in this question given is PQR is an equilateral triangle. Here PQR is an equilateral triangle and QTRS is a square. We all know that sides of equilateral triangles are equal and sides of squares are also equal. तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR और QTSR या RS हो गया था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं SR, ये पैटर्न होना चाहिए। तो QTSR जो है स्क्वायर है, तो ये भी साइड सब इक्वल हो गया, मतलब इसमें जितना भी साइड है ये और ये सब इक्वल हो गया। तो हम लोग को प्रूव करना है PT इज इक्वल टू PS, जब इसको हम इससे मिला है और इसको इससे मिला है तो ये दोनों हमको इक्वल करना है। तो दोनों इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, PQT और PRS दोनों को कन्वर्ट कर देंगे, तो कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, CPCT से PT इज इक्वल टू RS तो हो ही जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री होता ही है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया 150 और ये पूरा 150। तो चलिए, तो ये एंगल तो इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल ये साइड इसके इक्वल, तो ऐसे तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल यहां से PRS क्या है ना कि PQ इज इक्वल टू PR, देखिए PQ इज इक्वल टू PR
और क्या है QT इज इक्वल टू RS। देखिए QT और RS, और ऊपर भी मिला लेंगे QT और RS, हाँ इक्वल है, यहां से भी मिलाएंगे इक्वल है कि नहीं, और ऊपर से भी मिलाएंगे। और PQT, एंगल PQT इज इक्वल टू PRS, ये हो गया PRS, PQT इज इक्वल टू हो गया PRS। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQT ये क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PRS के बाई SAS कन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या होगा ना कि ये जो है, देखिए क्या प्रूव करना था PT, तो यहां से देखिए PT और PS CPCT से इक्वल हो गया, PT इज इक्वल टू PS बाई CPCT। अब हम लोग को क्या निकालना है, PSR, ये एंगल 50 निकालना है। तो PRS जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसके इक्वल है, तो इसको अगर हम लोग A मान लेंगे तो ये भी A होगा, PSR भी A होगा। तो A प्लस ये कितना है पूरा, ये 60 प्लस 90, यह 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 2A इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, तो 2A इज इक्वल टू 30, तो A इज इक्वल टू हम लोग को 15 आ गया। A 15 आ गया तो ये भी A है और ये भी A है, तो ये भी 15, ये भी 15, ये निकल गया है ना, ये देख लीजिए इसको। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल। We all know that what is medians. Medians in a triangle when a line drawn from a vertex to its opposite sides, it bisect the opposite side. मतलब एक लाइन सेगमेंट जो हम लोग ड्रॉ करेंगे किसी वर्टेक्स के उसके सामने वाले साइड को की तरफ, और सामने वाले साइड को जब जहां पे इंटरसेक्ट करता है तो वो इंटरसेक्ट करता नहीं है, उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है बेस को, तो उसी को मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ABC, और मीडियन ड्रॉ करना है, तो यहां से जब हम लोग यहाँ पर डाले तो ये और ये कट गया, AD जो है मीडियन है, और यहाँ AB इज इक्वल टू AC गिवन है, क्लियरली गिवन है, क्योंकि ये क्या है, ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड वी ऑल नो दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड हम लोग इक्वल लेंगे, इक्वल ले लिया, और यहाँ से इसके वर्टेक्स से जब यहाँ पर हम मीडियन डाले तो इसको बाइसेक्ट किया। अब हमको प्रूव करना है, गिवन में जो दे रखा है लिख लेते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज द मीडियन। AD क्या है, इसका मीडियन है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट it bisect the median bisect the vertical angle. It means you have to prove that this angle is equal to this. So BAD is equal to angle CAD. तो ये दोनों एंगल कब इक्वल होगा, जब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट प्रूव कर ले। कन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूव कर लेंगे तो यहाँ पर CPCT लगा देंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो कन्ग्रुएंट करने के लिए कंडीशन क्या क्या दिया हुआ, ये साइड इसके इक्वल दिया हुआ, ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन है, तो ये तो और आसान है, S से बन जाएगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD, जब ABD लिख लिए तो इसको लिखेंगे ACD, एंड ट्रायंगल ACD। अब क्या है ना, AB इज इक्वल टू AC ये दिया हुआ है, और BD इज इक्वल टू CD भी दे रखा है हम लोग का, BD इज इक्वल टू CD, ये दोनों गिवन में है। अब देखिए AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है, सो दैट ट्रायंगल ABD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये किस प्रोसेस से होगा, किस क्राइटेरिया से होगा, ये हो जाएगा SSS से। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये एंगल इसके इक्वल, तो इसको बोलेंगे BAD। तो देखते हैं BAD, तो एंगल BAD, इसमें जब BAD लिए तो यहाँ पर क्या होगा CAD, हाँ इक्वल टू CAD,
इक्वल तो हो ही गया बाई सीपी सीटी से। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, देख लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। देखिए गिवन में क्या है, इस फिगर में गिवन है OA इज इक्वल टू OB, मतलब देखिए OA इज इक्वल टू OB ये दिया हुआ है, और क्या दिया OP इज इक्वल टू OQ दे रखा है। और देखिए ये OQ और OP इक्वल है और OB और OA इक्वल है। इस बीच में जो ये O है ये कॉमन है। अगर इसको हम कट करके निकाल लें, इसको कट करके अगर हम लोग निकाल ले ऐसे करके, ये हो गया BPO, और यहां से इस ट्रायंगल को कट करके निकाल ले, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा OQA। यहां से हम जैसे निकाले, इसको कट करके निकाले, ऐसे कट करके निकाले, और इसको यहां से ऐसे कट करके निकाले, तो यहां जो O है वो दोनों में कॉमन है, वो कॉमन है। और गिवन में क्या दे रखा है, OA इज इक्वल टू OB। OA कहाँ है, OA इज इक्वल टू OB दिया हुआ है, इसको लिख लिए, इसको छोड़ दिया, अब इसको देखते हैं। अब OP इज इक्वल टू OQ ये दे रखा है। अब देखिए यहां से जब दोनों को आराम से हम लोग कन्ग्रुएंट कर सकते हैं, जैसे ही दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमको क्या इक्वल करना है, हाँ दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहां से हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, BP। नहीं, यहां से हम लोग क्या कर देंगे ना कि ये एंगल CPCT से एंगल B, पहले इसको कन्ग्रुएंट कर लेते हैं, उसके बाद क्या इक्वल होगा वहां से देखेंगे, पहले कन्ग्रुएंट कर लेते हैं तब जाके ये हो जाएगा प्रूफ। पहले इसको कन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल, ये BOP है तो यहां से होगा AOQ, ये हो गया AOQ, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, ये हो गया OP इज इक्वल टू OQ, ये गिवन है। और इसके बाद OB इज इक्वल टू OA, ये भी गिवन है। और यहाँ BOP एंगल BOP इज इक्वल टू AOQ, ये कॉमन है, ये दोनों गिवन हो गया और ये हम लोग का कॉमन हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOQ। किस प्रोसेस से, SAS हो गया। तो अब देखिए क्या क्या इक्वल होगा, एंगल B और एंगल A इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखते हैं क्या क्या हम लोगों को करना है। PX इक्वल टू QX, इसको इक्वल करना है। और AX कहाँ है, AX इक्वल टू, ये करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट से है। तो देखिए PX कहाँ है, PX यहाँ है, PX इक्वल टू QX ये, और AX कहाँ है, X ये है, और BX, मतलब अब इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है। तो इसमें अब दो एंगल इक्वल हो गया तो कोई एक साइड तो इक्वल होना ही चाहिए। तो अब साइड कौन सा इक्वल होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब साइड कौन सा इक्वल होगा उसको देख लेते हैं, थोड़ा ढंग से। अब देखिए इसमें दे रखा है, अब OP इज इक्वल टू OQ, OB इज इक्वल टू OA, OP इज इक्वल टू OQ और OB। तो यहां पर लिख लीजिए OB इज इक्वल टू क्या है, देखो तो OB इज इक्वल टू OA है, OB इज इक्वल टू OA है। OB इज इक्वल टू OA दे रखा है, फिर OP इज इक्वल टू OQ। तो OB में से देखिए, OB में से अगर OQ को घटाए, OB में से OQ को घटाए, OB में से अगर OQ को घटा देंगे, और OA में से क्या घटाएंगे, OA में से OP घटाएंगे, OP घटाएंगे, देखो
अब OB में से OQ घटाए, OB में से OQ घटाए और OA में से OP घटाएंगे, OB में से OQ घटाए, OA में से OP घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए OB माइनस OQ, तो ये बच जाएगा BQ इज इक्वल टू, अब OA में से OP घटाएंगे तो ये बच जाएगा AP। तो हम लोग को क्या मिला? BQ, ये इसके इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हुआ तो अब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? B इन ट्रायंगल BXQ इज इक्वल टू BXQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AXP, सॉरी इन ट्रायंगल BXQ एंड ट्रायंगल ये BXQ तो हो जाएगा AXP, ट्रायंगल AXP ये हो गया। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो कैसे करेंगे? BQ तो इक्वल दे ही रखा है, BQ इज इक्वल टू AP, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। और ये दोनों ये इसकी इक्वल है, क्या इक्वल है? BXQ, एंगल BXQ इज इक्वल टू AXP, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से है। और क्या है? QBX, एंगल QBX इज इक्वल टू QBX इज इक्वल टू PAX, ये तो अभी प्रूफ किए ही हम लोग। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सो दैट इधर हम लिख देते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, ट्रायंगल BXQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AXP। ये किस प्रोसेस से हुआ? AAS से इसको कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर लिए। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किए तो हमको क्या निकाला? PX देखते हैं, PX इज इक्वल टू, ये क्या होगा? सॉरी, यहाँ PX इज इक्वल टू QX हो गया। अब क्या निकालना है? AX यहाँ है, AX इज इक्वल टू BX, ये प्रूफ हो गया। CPCT से हो गया ये प्रूफ। तो इसको देख लीजिए।